Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 15 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IICA, फिर इन्हीं के साथ लीन कैंपस, स्टार्टअप्स एंड WEICI। इन तीनों के द्वारा कोलैबोरेट किया गया ताकि जो कॉरपोरेट एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, उनको स्किल्स के बारे में अवेयर किया जा सके, राइट, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाया जा सके। एंड अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाती हैं तो उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज़ की, जो भी तरीके से हेल्प की जा सकती है वो प्रोवाइड की जाए ताकि एक प्रॉपर नेटवर्क बन सके। तो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंड कॉर्पोरेट वीमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई। IICA क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ? लीन कैंपस स्टार्टअप ट्रस्ट के साथ, जो कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रहेगा, एंड जो कि ट्रस्ट है, एंड एक मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ इंडिया के साथ मिलके इन मानेसर गुड़गांव ये MOU साइन किया गया ताकि वीमेंस को यहाँ पे हेल्प की जा सके। करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री इन्होंने एक डील साइन की फॉर द सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ IGLA एयर डिफेंस सिस्टम। तो याद रखेंगे, रशिया ने इंडिया के साथ मिलके यहाँ पे अभी एक ये डील साइन करी जहाँ पे हम सप्लाई करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे IGLA एयर डिफेंस सिस्टम को। करेक्ट। यहीं पे याद रखेंगे ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना, ये किसके लिए है? एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के लिए। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो क्या है? IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स। करेक्ट। इसकी आप फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। रशिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू सप्लाई एंड प्रोड्यूस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो कि है IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स, इंडिया को। ठीक है। IGLAS ये क्या है? डिजाइन टू काउंटर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, एंड इट हैज़ अ रेंज ऑफ 500 मीटर्स टू 6000 मीटर्स, एंड ऑल्टीट्यूड में अगर हाइट में देखा जाए तो 10 मीटर से 3500 मीटर तक ये ऊपर जा सकती है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे, मतलब ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है मिसाइल किसी भी टारगेट पर, उस पर ये वर्क करती है। एंड इट इज़ एक्सपोर्टेड बाय रशियन डिफेंस एक्सपोर्ट एजेंसी जो कि है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। फिर यही याद रखेंगे, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, वहीं पर रशिया रिमेन्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म सप्लायर। चलिए, अगर इसी के अलावा फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा युवा भारत, किनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, ये पोर्टल को? तो PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था माय भारत, इस पोर्टल को। ठीक है। फिर रन फॉर यूनिटी,
ये एक इवेंट हुआ था, कहाँ पर हमें देखने को मिला रन फॉर यूनिटी, ये हमें लखनऊ में देखने को मिला ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लखनऊ को ही याद रखेंगे यूपी का बिगेस्ट आईटी हब बनाया जा रहा है पूरे इंडिया में, राइट। इंडिया का लार्जेस्ट आईटी हब कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, यूपी के लखनऊ में, ठीक। फिर इसी के साथ साथ बिग बास्केट ने टॉप किया फेयर वर्क इंडेक्स 2023 को फॉर गिग वर्कर्स। नेक्स्ट थिंग, अभी रिसेंटली सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सी बनी है, वो है कोझिकोडे। कहाँ पर है, केरला में। यहीं पे अगर पूछा जाए यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक कौन सी डिक्लेयर की गई है, वो है ग्वालियर। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग लोन टू इंडिया फॉर क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ताकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी कंपनीज आएंगी, करेक्ट, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो किसके द्वारा ये किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर यहाँ पर अभी $400 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने की बात की गई, ताकि क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। एंड इससे क्या होगा, ये जो लोन है, एक तो याद रखेंगे 12 साल का यहाँ पे रिटर्न पीरियड रहेगा, आपको प्रिंसिपल जो रीपेमेंट होगा 12 साल तक आपको इसको वापस पे करना पड़ेगा, ठीक। तो याद रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, आपका ये हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया। फिर यहीं पे आप देखेंगे कि ये 2 प्रोग्राम्स के लिए था बेसिकली। एक तो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे। दूसरा आ जाता है सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम क्वालिटी सर्विसेज भी डिलीवर करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बन गया, सर्विसेज में क्या हो जाएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, मेंटेनेंस सर्विस होती है। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर आप मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, ताकि वहाँ का आपकी साफ सफाई अच्छी से हो सके, चीज़ों का ध्यान रखा जा सके, तो वो आपकी सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम में आ गया, ठीक। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली एजुकेशनल टाइज को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया। तो इंडिया ने एक MOU साइन किया UAE के साथ, ताकि एजुकेशनल कैपेबिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ बढ़ाया जा सके। देन वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो, ये कहाँ पर हुआ था, ये दुबई UAE में हमें देखने को मिला, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो, करेक्ट। फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक वर्कशॉप कराई गई, गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म के ऊपर। आई रिपीट, गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म के ऊपर अभी एक वर्कशॉप हुई थी, किसके द्वारा कराई गई थी, तो नीति आयोग के द्वारा इसको कराया गया, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया है, 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया है 2028 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, NHAI ने अभी रिसेंटली एक्सेप्ट किया पहला इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड को एज द बिड सिक्योरिटी फॉर द टॉल ऑपरेटर ट्रांसफर बंडल 14 बिड। ये जो बॉन्ड था इशू किया गया था एट द रेट ऑफ 0.25% एंड डिड नॉट रिक्वायर एनी मार्जिन मनी। फिर यहीं पे याद रखेंगे, ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पर आपका जो ये बिड सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को रखा गया। अब ये जो आपका बिड सिक्योरिटी बेसिकली क्या हो जाएगी कि अगर ये बिड सक्सेसफुल हो जाती है, राइट, जो इन्होंने बोली लगाई वो सक्सेसफुल हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सेप्ट हो जाता है, तो पेमेंट इनके द्वारा हो जाएगी, करेक्ट। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग यूटिलाइज्ड एज अ बैंक गारंटी। और बैंक गारंटी क्या होता है, बैंक गारंटी होता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, करेक्ट, तो ये बैंक अपनी तरफ से गारंटी देता है कि सो एंड सो पर्सन, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो ये पर्सन आपको पे करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, तो उसको बैंक गारंटी कह देते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे आ जाता है, this will be the first time that this instrument is being utilized as a bank guarantee in the road infrastructure sector for monetization of bids। and NHAI ने यहाँ पे collaborate किया हाईवे ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SBI जनरल इंश्योरेंस एंड एऑन इंडिया इंश्योरेंस के साथ फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, ठीक। और बिड बॉन्ड क्या होता है, ये एक टाइप की श्योरिटी बॉन्ड होता है जो कि इशू करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को ड्यूरिंग द बिडिंग प्रोसेस, और ये गारंटी करता है कि कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे वो पे करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर NHAI की मैं बात करूं, चेयरपर्सन कौन रहेंगे, संतोष कुमार यादव, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा, राइट। और NHAI ने एक्सेप्ट किया पहला इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड एज बिड सिक्योरिटी फॉर टोल ऑपरेट ट्रांसफर बंडल 14 बिड।
इसी के अलावा याद रखेंगे किस यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की अभी एक सैटेलाइट है, तो वह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक, फिर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ये कहाँ पर हुआ था? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो बेंगलोर में हुआ था। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन वर्ल्ड फूड इंडिया, ये कहाँ पे हुआ था? इसका इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ठीक, फिर नीति आयोग ने अभी एक स्टेट लेवल इनोवेशन वर्कशॉप को होस्ट किया, और ये स्टेट लेवल इनोवेशन वर्कशॉप हुई कहाँ पर थी? आईआईएम बेंगलोर में हुई थी। नीति आयोग के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। करेक्ट। फिर एक और याद रखेंगे, अभी रिसेंटली 15वीं इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुई कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन था इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का। नेक्स्ट है फेडफिना, IREDA, ईपैक ड्यूरेबल एंड सूरज एस्टेट डेवलपर्स, इनको अप्रूवल मिल गया फ्रॉम सेबी टू फ्लोट देयर IPOs। तो मतलब ये IPOs लॉन्च कर रहे हैं, और यहीं पे देखेंगे फेडफिना का IPO होगा 750 करोड़ का, IREDA का होगा 40.31 करोड़ का, ईपैक ड्यूरेबल का होगा 400 करोड़ का, और यहीं पे याद रखेंगे सूरज एस्टेट का भी होगा 400 करोड़ का। सेबी की बात करें तो चेयरपर्सन मदाबी पूरी वक्त, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। राइट। देन इसी के साथ साथ बताओ AI सेफ्टी समिट कहां पर हुई थी? यूके में हुई थी। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? राजीव चंद्रशेखर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया AI सेफ्टी समिट 2023 की, जो कि यूके में हुई। फिर रन फॉर यूनिटी हम देख ही चुके हैं, लखनऊ में हुआ था। बर्थ एनिवर्सरी पे किसके? सरदार पटेल जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है। फिर अभी एक काउ सेंसस हुआ है, किस स्टेट के द्वारा कराया गया ये काउ सेंसस? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको कराया गया काउ सेंसस। करेक्ट। तो नेक्स्ट बताओ, पहला इंटरनेशनल कैंपस ज़ंजीबार में कौन खोल रहा है? ज़ंजीबार में पहला इंटरनेशनल कैंपस IIT मद्रास खोल रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, डायना एल्डूजी एंड श्रीलंका के अरविंदा दे सिल्वा, इनको इंडक्ट किया गया ICC हॉल ऑफ द फेम 2023 में। एंड इनको सम्मानित करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े दिग्गज प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम के, इन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। राइट। तो इनको यहाँ पे सम्मानित करने के लिए इनको ICC हॉल ऑफ द फेम 2023 में इंडक्ट करा गया। फिर पूछा जाए कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा रहेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर। इसी के साथ साथ WHO की SEAR रीजन में किनको यहाँ पे लीड अपॉइंट किया गया? वो है साइमा वाजिद। और ये साइमा वाजिद कौन है? ये डॉटर है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की। देन ED कौन अपॉइंट किए गए हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, वो रहेंगे मनोरंजन मिश्रा। सॉरी, आई रिपीट, रोहित ऋषि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। जो भी हम बात कर रहे थे मनोरंजन मिश्रा, ये क्या अपॉइंट किए गए हैं? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं RBI के। देन हीरालाल समारिया, इनको अपॉइंट किया गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एंड हितेश मकवाना, इनको अपॉइंट किया गया सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। लायनल मेसी को अभी बैलन डी ऑर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, या इन्होंने जीता, और कौन सा एडिशन था इनके लिए? 8वां बैलन डी ऑर अवार्ड था। मूविंग ऑन। नेक्स्ट, फेडरल बैंक ने अभी किस प्लेयर को अपॉइंट किया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? तो हम बात कर रहे हैं HS प्रणॉय की। HS प्रणॉय याद रखेंगे किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, इंडियन शटलर हैं, और इनको अभी अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक। ये कितने? 31 साल के हैं। ठीक है। और HS प्रणॉय किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये केरला से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखेंगे। 8th इनकी रैंकिंग रहेगी इन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, ये तो गए HS प्रणॉय। अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं, श्याम श्रीनिवासन यहाँ के MD एंड CEO रहेंगे। अलुवा केरला, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर रहेगा, और 1931 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, रियर एडमिरल CR प्रवीण नैयर ने अजूम की कमांड एज द फ्लीट कमांडर ऑफ द इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट। आई रिपीट, रियर एडमिरल CR प्रवीण नैयर officially assumed the role of the flag officer commanding the Western Fleet on the November 10, marking a change in leadership for the Western Fleet, the sword arm of the Indian Navy। और यहीं पे याद रखेंगे सक्सीड किनको करेंगे? रियर एडमिरल विनीत मकार्थी को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू फ्लीट कमांडर ऑफ द इंडियन नेवीज वेस्टर्न
फ्लीट, और ये रिप्लेस करेंगे विनीत मैकार्थी को, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द डैशबोर्ड लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू मॉनिटर की परफॉर्मेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था, और ये जो डैशबोर्ड लॉन्च किया गया ना, इससे क्या होगा कि लोग, एक तो यहाँ पे डाटा होगा काफ़ी सारा इनके पास, तो उस डाटा की बेसिस पे प्रॉपर चेक रख सकेंगे, प्रॉपर डिसीजंस लिए जा सकेंगे फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज। तो पूछा जा रहा है कि उसका नाम बताओ, उस पोर्टल का नाम बताओ, उस डैशबोर्ड का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ताकि अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके, उन पे चेक रखा जा सके। तो क्या रहेगा उसका नाम? वो है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, ये एक पोर्टल है, मतलब ये क्या है, एक वेबसाइट है जो लॉन्च की गई थी ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ पे जो की परफॉर्मेंस है उनको यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके और उन पे चेक रखा जा सके। ये पोर्टल किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये इनिशिएटिव रहेगा। यहाँ पर प्लानिंग, फाइनेंस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, इनके ऊपर चेक रखा जाएगा। एंड जैसे जैसे यहाँ पे डाटा आता रहेगा वैसे वैसे ये डाटा, ये डैशबोर्ड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एंड इवन लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा डैशबोर्ड। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे डाटा अपडेट किया जाएगा और लोगों को भी यहाँ पे काफ़ी इससे अपडेट मिलता रहेगा। तो ये है आपका आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्होंने जीता? वो है विहान ताल्या विकास, इन्होंने जीता है आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड को। देन यूएसटी ने जीता आपका महात्मा अवार्ड 2023 का फॉर इम्पैक्टफुल सीएसआर इनिशिएटिव्स। करेक्ट। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? केरला स्टेट को। देन 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगी? कौन सी कंट्री? सऊदी अरेबिया। ठीक है, फिर अभी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस प्लेयर का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था? वो है सचिन तेंदुलकर, और इनको ही नेशनल आइकन भी अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और नेशनल आइकन एक और बने थे, एक्टर थे, वो है राजकुमार राव। नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने अभी लॉन्च किया 29th कार्गो मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नासा और स्पेसएक्स का ये मिशन रहेगा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की मदद से, जो कि है CRS-29 ड्रैगन, इसको लेके गया गया स्पेस में। ये 29th कमर्शियल मिशन था टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको ले जाया गया स्पेस में, एंड कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया AMNS इंडिया के साथ, ताकि खो खो के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस्टेब्लिश किए जा सके इन ओडिशा, एंड जो यूथ हैं ओडिशा के वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। आपके खो खो स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, बेटर प्लेटफॉर्म मिल सके, एंड बेटर ट्रेनिंग सेंटर्स मिल सके। तो इसलिए याद रखेंगे, ओडिशा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया एस्लर मित्तल निपन स्टील, जो कि है AMNS इंडिया के साथ, ताकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को सेटअप किया जा सके फॉर खो खो इन ओडिशा। और ओडिशा में भी कहाँ पर? कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर में ये सेटअप करने की बात की गई। ठीक है, और ओडिशा में अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 3 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 नवंबर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 नवंबर को। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे 7 नवंबर को। वर्ल्ड रेडियोग्राफर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 नवंबर को। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को ही, क्योंकि महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने विजिट किया था 1947 में पहली बार। कहाँ पर? ऑल इंडिया रेडियो में, जो कि अब आकाशवाणी है। करेक्ट, इसीलिए इनके जो विजिट को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर हम बोलें मेक थिंग्स ईजियर डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ। करेक्ट, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन। ये डे ऑब्जर्व करता है सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को, और इस बार 2023 में ये कब था? आपका 9 नवंबर को ये डे हमने ऑब्जर्व करा। करेक्ट, 2022 में ये 10 नवंबर को था, और 2024 में ये 14 नवंबर को था। फिर इसकी थीम याद रखेंगे, कोलैबोरेशन एंड कॉर्पोरेशन, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे की।
नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन है? वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 नवंबर को, एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट द डिजीज, जो कि है न्यूमोनिया। बच्चों में इसकी बहुत ज़्यादा डेथ होती है बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया, करेक्ट। एंड इसकी एक थीम याद रखनी पड़ेगी आपको, वो है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक। आई रिपीट, एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड न्यूमोनिया डे की, जो कि 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 2009 में इसको ऑब्जर्व करा गया था। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ये डे आपका 14 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। एंड अक्रॉस द ग्लोब ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज़ एंड द हेल्थ ऑफ पीपल। इसकी प्रिवेंशन में, इसकी डायग्नोसिस में एंड ट्रीटमेंट में लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड पहली बार ये आपका 2007 में ये डे ऑब्जर्व करा गया था। तो दोस्तों ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। IICA ने साइन किया एक MOU विद लीन कैंपस स्टार्टअप्स एंड WEICI इंडिया टू एम्पावर कॉर्पोरेट एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। रशिया एंड इंडिया ने एक डील साइन की ऑन सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ IGL एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन का लोन साइन किया टू क्रिएट क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। NHAI ने एक्सेप्ट किया फर्स्ट इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड एज बिड सिक्योरिटी फॉर NHAI TOT बिड फॉर मोनेटाइजेशन। फेडफिना, IREDA, EPAC ड्यूरेबल्स एंड सूरज एस्टेट यहाँ पर अभी अपना इनको अप्रूवल मिला ताकि अपना IPO लॉन्च कर सकें। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO की फुल फॉर्म। दैन इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, डायना एल्डूजी एंड श्रीलंका के अरविंदा दे सिल्वा, इनको इंडक्ट किया गया ICC हॉल ऑफ फेम में। फेडरल बैंक ने पार्टनर किया इंडियन शटलर HS प्रणॉय के साथ फॉर ब्रांड प्रमोशन। रियल एडमिरल CR प्रवीण नैर ने अजूम किया कमांड एज द फ्लीट कमांडर ऑफ द इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट। एंड आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, ये पोर्टल लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। देन SpaceX ने लॉन्च किया 29th कार्गो मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजिंग Falcon 9 रॉकेट। एंड ओडिशा गवर्नमेंट यहाँ पे एक MOU साइन कर रही है AMNS इंडिया के साथ ताकि खो खो के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर को सेटअप किया जा सके एट कलिंगा स्टेडियम इन ओडिशा भुवनेश्वर। देन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को, वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे 12 नवंबर को, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे आपका 12 नवंबर को, एंड वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आपका 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स जो आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पेट एक्सरसाइज की। कॉर्पेट क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट का ही नाम रहेगा, राइट। फुल फॉर्म रहेगी कॉर्पेट एक्सरसाइज। तो याद रखेंगे कॉर्पेट एक्सरसाइज एंड बोंगो सागर एक्सरसाइज। बोंगो सागर एक्सरसाइज, ये दो एक्सरसाइज अभी कंडक्ट कराई गई। अगर मैं बात करूं कॉर्पेट एक्सरसाइज की तो ये 5th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। बोंगो सागर की बात करूं तो ये 4th एडिशन था इस बोंगो सागर एक्सरसाइज का। इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। एंड लोकेशन भी इंपॉर्टेंट आ जाती है, बे ऑफ बंगाल, ये आपकी लोकेशन रहेगी जहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच में इन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 5वीं एडिशन, बोंगो सागर 4थी एडिशन, इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो एक्सरसाइज थी ना, अब पूछा जाए कि इंडिया की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो INS कुथार ने, एंड इसी के साथ साथ एंटी सबमरीन कॉर्वेट एंड INS किल्टन एंड एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो कि एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट होता है, इसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश की तरफ से BNS अबू बाकर जो कि है बांग्लादेश नेवी शिप, अबू बाकर ने पार्टिसिपेट किया। ये डॉर्नियर से आपको याद आया होगा कि डॉर्नियर 228 ये भी तो एक एयरक्राफ्ट था, पेट्रोल एयरक्राफ्ट था, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो कि सर्वेलेंस के लिए श्रीलंका को गिफ्ट किया गया था। और ये 2nd एडिशन था या फिर 2nd एयरक्राफ्ट था जो इनको गिफ्ट किया गया था। पहला वापस इंडिया आ चुका है फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉर्पेट एंड बोंगो सागर एक्सरसाइज, 5वीं कॉर्पेट 4थी बोंगो सागर एक्सरसाइज जो भी बे ऑफ बंगाल में हुई। नेक्स्ट पर आते हैं। वे पूछा जा रहा है हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज वर लिस्टेड इन द QS एशिया रैंकिंग 2024। QS क्वार्टरली साइमंड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2024 की। तो 2024 में इंडिया की कितनी रैंकिंग यहाँ पे लिस्ट या कितनी यूनिवर्सिटीज लिस्ट की गई थी और 2023 की में कितनी थी? तो 2023 की में तो आ जाती हैं 118, 2024 की में आ जाती हैं 148। तो यहाँ पे 5वां ऑप्शन बना लेंगे, 148 यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको लिस्ट किया गया था इन क्वार्टरली साइमंड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की लिस्ट में। ठीक है, 30 हाईएस्ट है, मतलब पिछले साल से 30 ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिस्ट की गई। फिर ये एशिया की है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट जो नंबर आया है यूनिवर्सिटीज़ का वो इंडिया से आया है। तो मतलब इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम डोमिनेट कर रहा है एशिया रीजन में। चाइना की कितनी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट की गई? 133। और फिर जापान की कितनी यहाँ पे लिस्ट की गई? 96। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये कौन सा एडिशन था क्वाकरेली साइमन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का? तो ये 16वां एडिशन था जो आपको याद रखना है। फिर इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किसने किया? टॉप की पोजीशन किसकी थी? वो थी पेकिंग यूनिवर्सिटी की। पेकिंग यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? ये बीजिंग चाइना में है आपका। ठीक, इनकी फर्स्ट पोजीशन आती है इन दिस क्वाकरेली साइमन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की। एंड आईआईटी बॉम्बे इसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में से टॉप किया, इनकी 40th पोजीशन रहेगी इस लिस्ट में। क्यूएस क्वाकरेली साइमन का हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है? तो ये लंदन यूके में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। तो जेंडर इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? सबसे पहले तो याद रखो हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस इंडेक्स की। इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी और ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रहेगी 117 आउट ऑफ 129 कंट्रीज। यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया आ जाता है ओबीआई, अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट। करेक्ट, इनके द्वारा ये एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इनका इंस्टीट्यूट रहेगा, इनके द्वारा ये इंक्लूसिवनेस इंडेक्स को रिलीज किया गया। यहाँ पे इंडिया की रैंक आ जाती है 117 आउट ऑफ 129 कंट्रीज। अब इसी में भी आपकी कुछ और डाटाज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा जाता है जेंडर इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो जेंडर इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक आ जाती है 121। यहीं पे अगर कुछ और देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जेंडर देखा, तो जेंडर में आ जाती है 121। अगर मैं बात करूँ रिलीजियन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक आ जाती है 129। ठीक, वहीं पे अगर मैं बात करूँ अब डिसेबिलिटी की, डिसेबिलिटी इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक आ जाती है 108। वहीं पे रेस इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक आ जाती है 87। एंड लास्ट अगर देखें जनरल पॉपुलेशन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक 40th। और एक और देखते हैं LGBTQ प्लस इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, यहाँ पर इंडिया की रैंक आ जाती है 39। ठीक, यहाँ पे इस इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में जिसमें इंडिया की रैंक 117 आउट ऑफ 129, टॉप किसने किया? तो वो टॉप किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। फिर न्यूजीलैंड के बाद पोर्चुगल सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे नीदरलैंड। ठीक, तो इंक्लूसिवनेस इंडेक्स ओबीआई जो कि है अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है यूएसए में, यहाँ पर इनके द्वारा रिलीज किया गया और इंडिया की रैंक क्या रहेगी यहाँ पे? 117। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है मूडीज रिटेन्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंट। तो मूडी ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन करी है वो कितने परसेंट पे रिटेन करी है वो पूछा गया है। तो इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इंडिया ग्रो करेगा 6.7% से इन दिस ईयर इन 2023। ठीक है, फिर यहीं पे इन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर अगर मैं 2024 की बात करूं तो इंडिया कितने परसेंट से ग्रो करने की बात करता है? तो इंडिया यहाँ पर 6.1% से ग्रो करेगा। वहीं पे अगर मैं 2025 की बात करूं तो इंडिया 6.3% से यहाँ पे ग्रो करने की बात करता है। आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है इंडिया में 2 to 6% रहता है और एज ऑफ नाउ 5.5 से लेकर 6.1% के बीच में यहाँ पर हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन हमारा वेरी कर रहा है। ये डाटा चेंज होता रहेगा, तो बहुत टाइम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं गाज़ा स्ट्रिप वॉर चल रही है आपकी इसराइल और हमास के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में ऑलरेडी तो वॉर चली रही थी, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हमारी जो यूएस है, यूएस में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस की बातें चल रही है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड अभी जो डॉलर है वो ऑल टाइम हाई पे था और आईएनआर की वैल्यू गिर गई। और अगर हम देखें तो कितने आईएनआर, कितने रुपीज़ एक डॉलर के बराबर था जो अभी हाईएस्ट एवर टच करके आया है, या मुझे कमेंट में बताओ। पिछले हफ्ते की बात है, अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू टच हुई है, अभी हाईएस्ट एवर, मतलब कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया के जो रुपीज़ है इसकी वैल्यू गिर गई एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ डॉलर। तो अब उसकी वैल्यू बताइए, इंडिया कितना एक डॉलर कितने इंडियन रुपीज़ के बराबर था, जो कि हाईएस्ट एवर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो डाटा था ना मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, करेक्ट, ये ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक ये रिपोर्ट रिलीज़ की थी, इसमें इन्होंने यहाँ पर अपना डाटा को रिलीज़ करा है अबाउट दिस जीडीपी ग्रोथ रेट्स। ए डिसूजा, इनको ऑनर किया गया 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड से। इनका जो कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, 4 डेकेड का इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया 19th एडिशन ऑफ कलाकार पुरस्कार अवार्ड। राइट, कलाकार पुरस्कार अवार्ड से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया।
राइट इनका जो कंट्रीब्यूशन था म्यूजिक का ओवर नॉट 4-5 डिकेड्स ऑफ इनका म्यूजिक का जो कंट्रीब्यूशन था उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है कलाकार पुरस्कार से, जो कि 19th एडिशन था कलाकार पुरस्कार का। इसमें 50,000 रुपये का एक कैश प्राइज होता है, एक साइटेशन और एक मेमेंटो भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन फिनिशेस सेकंड इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी? इंडिया आ जाता है सेकंड पोजीशन पे 7 मेडल के साथ। 7 में से अगर मेडल्स देखें तो 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज रहेंगे एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी ये चैंपियनशिप। 3 से लेके 10 नवंबर के बीच में ये आपकी चैंपियनशिप हुई थी, करेक्ट। फिर यहीं पे अगर मेडल टैली की बात कर रहे हैं तो साउथ कोरिया की यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन रहेगी विद 11 मेडल्स। इंडिया की 7th पोजीशन पे इंडिया की सेकंड पोजीशन रहेगी विद 7 मेडल्स और कजाकिस्तान की 3rd पोजीशन विद 3 मेडल्स। यहीं पे देखेंगे प्रनीत कौर, आदिति स्वामी, प्रियांश और ये सारे लोग, इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। तो 3 गोल्ड मेडल हम देख रहे थे कि 3 गोल्ड मेडल हैं, तो 1, 2 और 3 ये 3 आपके गोल्ड मेडल रहेंगे, याद रखेंगे। तो ये थी आपकी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुई 3 से 10 नवंबर के बीच में। इंडिया ने सेकेंड फिनिश किया इन द मेडल टैली विद 3 गोल्ड मेडल्स। नेक्स्ट पर आते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। आई रिपीट, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत रत्न अवॉर्डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। 2023 में हमने 135वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है इनकी। और पहली बार अगर पूछा जाए कि नेशनल एजुकेशन डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2008 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। अभी रिसेंटली एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर। ये यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर का काम क्या रहेगा? बेसिकली यूपीआई के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना और लोगों को जागरूक करना कि यूपीआई एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है फॉर पेमेंट। एंड इसी के लिए किन को अपॉइंट किया गया है यूपीआई का सेफ्टी एम्बेसडर? वो रहेंगे पंकज त्रिपाठी सर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस एक्टर है। इनको एक बहुत ही दिग्गज नाम से भी जाना जाता है, जो कि है कालीन भैया, क्योंकि इनका जो रोल था मिर्ज़ापुर में, उनके लिए इनको कालीन भैया के नाम से भी काफ़ी फेमस रहता है। इनका जो पहला नेशनल अवार्ड मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड, इनको 2018 में मिला था और इनको फिर सेकेंड नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2021 में। एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में ये लॉन्च हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र इनका हेडक्वार्टर रहेगा और यहाँ पे एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? दिलीप एसपे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने यहाँ पर अभी 2 ड्रोन्स को इंपोर्ट किया है, बाय करने की बात करी फ्रॉम इजराइल से। ये जो ड्रोन रहेंगे ये है मेल यूएस। मेल यूएस क्या होता है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, करेक्ट। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये आपके ड्रोन रहेंगे। 2 ड्रोन का नाम क्या रहेगा? एक है हर्मीस 900 और दूसरा ड्रोन रहेगा आपका हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। हर्मीज 900 स्टारलाइनर एंड हेरॉन मार्क 2, ये आपके 2 ड्रोन रहेंगे जो कि अभी इनसे प्रोक्योर किए जाएंगे इजराइल से। एंड इजराइल बेस्ड एल्बिट सिस्टम्स कंपनी का नाम है जो इनको डेवलप करती है। तो याद रखेंगे 2 ड्रोन्स हैं इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोक्योर किए गए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, मतलब हम कह सकते हैं इंडियन फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे प्रोक्योर किए गए फ्रॉम इजराइल। इन 2 ड्रोन का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, हु इज द सिंगर ऑफ अबंडेंस एंड मिलेट सॉन्ग विच हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड्स। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023। एंड तीसरा, कॉर्नेशन फूड प्रोजेक्ट जो भी न्यूज़ में था, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? और यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं अबंडेंस एंड मिलेट्स, पीएम मोदी के द्वारा भी यहाँ पे को सिंगर रहे थे यहाँ पर, राइट। एंड यहीं पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ये फेमस भी हुआ था सॉन्ग, क्योंकि मिलेट्स की हमने यहाँ पे बात की थी और अभी इसको नॉमिनेट किया गया फॉर ग्रैमी अवार्ड्स। तो सिंगर का नाम बताइए, राइट। तो दोस्तों ये 3 हमारे होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं पार्टिसिपेशन चाहता हूँ बच्चों की तरफ से। एंड मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था, बच्चे कह रहे हैं कि सर कमेंट करने से क्या होगा? कमेंट करने से बच्चों ये होगा कि जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो आप रिसर्च करेंगे, आप उसको गूगल करेंगे, आप वहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसके बारे में, आपको 10 चीज़ें नहीं पता लगेंगी, वो चीज़ें याद रहेंगी। फिर आप जब कमेंट करेंगे ना, तो ये एक आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन
मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे कई बच्चे आंसर कर देते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता आप जस्ट वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर दो कमेंट को, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपकी रिवीजन में, आपको याद ही नहीं होगा, आपने ना आर्टिकल्स पढ़ा, आपके उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो बेनिफिट क्या होगा। तो पढ़िए उन चीज़ों के बारे में, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.